اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بھی یہاں پر دھرنے میں پہنچ چکے ہیں. اکرم راجہ جو ہے وہ دے کر کو نا سیلفیز لے رکھے جنہوں نے عمران خان کی تصاویر بھی اٹھا رکھی ہیں. ان سے کچھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس وقت جو ہے وہ کارکنان نے مکمل طور پر گھیر رکھا ہے اور ان کے ہمراہ جو ہے وہ سیلفیز لے رہے ہیں, تصاویر بنوا رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. عمران خان کی بہنیں موجود ہیں, دیگر پی ٹی آئی جو قیادت ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. جنید رزاق کو کیا کس کام کے لیے بنایا؟ اس کو صدر بنایا ہوا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. کارکنان کی جانب سے جو ہے مسلسل نعرہ بازی کی جا رہی ہے. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پولیس نے جو حکومت پر رکاوٹیں لگا کر تو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے جانے کے راستے کو جو ہے وہ بند کر رکھا ہے. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سامنے کارکنان موجود ہیں جو کہ مسلسل جو ہے وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں. یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود ہے. اور آپ اس وقت جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جانب سے جو ہے مسلسل جو ہے وہ نعرہ بازی کی جا رہی ہے. یہ ہماری حالت کیسز کے علاوہ ہم نے ملاقات کی, اب دھکے کھاتے رہتے ہیں. یہ ملک میں رول آف لا کی کمی ہے, اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. پنجاب میں کب نکلیں گے ہم یہ ہر ویک یہاں پہ پنجاب میں تو بالکل بھی لاہور کی بات کر رہا ہوں, لاہور میں لوگ نہیں نکلتے نظر آتے. پنڈی اڈیالہ پنجاب میں اور ہر دفعہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میں آتے ہیں. خان صاحب نے کال دینی ہے جب انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو کہا ہوا ہے جو قومی اسمبلی ہے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. جب انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب سے ہم بھرپور نکلیں. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے طور پر آپ لوگ مزاحمت وہاں پہ بھی دکھاتے ہیں؟ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ادھر نظر آتی ہے وہاں بھی ویسے ہی. آپ دیکھیں کہ جب جون کا بجٹ پاس ہوا تھا, بجٹ پیش ہوا تھا, مریم آئی تھی تو 27 لوگ انہوں نے ہمارے ایکسپیل کیے تھے پنجاب اسمبلی سے, اور وہ تین ماہ 15 سٹنگ کے لیے انہوں نے بند کر دیا. اور اس کے بعد ریفرنس بھیجنے کے لیے بھی انہوں نے اسپیکر کو بھیجا, تو وہ مزاحمت ہی تھی اسی وجہ سے. آج کے یہ بتائیں مریم نواز کے جو اچھے کام ہے جس طریقے سے انہوں نے الیکٹرانک بسز وغیرہ متعارف کروائی ہیں یا باقی اچھے کام ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کے کریڈٹ دیتے ہیں اس کا؟ دیکھیے کون سا ایک اچھا کام ہے پنجاب میں مجھے بتا دیں 2 سال ہو گئے, مہنگائی کی کیا حالت ہے, کرپشن کی کیا حالت ہے, آج رول آف لا کی کیا حالت ہے. آج چوک میں کھڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ میں 1000 سے لوگ انہوں نے بندے وہاں پہ قتل کیے ہوئے. رول آف لا ہے, یہ عدالتی نظام ہے. پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کرتی پھرے. آپ ٹی ایل پی کی حالت دیکھ لیں, ان کو انہوں نے کیا کیا تھا. یہ ووٹ لاہور میں جو بھی الیکشن ہوا ضمنی الیکشن, اس میں تو صاحب کے لگائے وہ بندہ تو ہار گیا. جب وہ بالکل ٹھیک تھا ٹرن آؤٹ, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 5.7 ٹرن آؤٹ تھا. وہ سب کو پتہ ہے حالات کیا جو پنجاب میں جو گاندھی 8 فروری کو کیا ہوا. کوئی ایک حلقہ لے لیں پورے پنجاب کا, میری سیٹ آپ لے لیں, وہاں پہ میں حلفاً دوں گا ریزائن, اور لیکن میرٹ پہ ہو. آپ کمیشن انٹرنیشنل کمیشن بیٹھے وہاں پہ الیکشن دیکھ لیں. ایک خان کا میرا نہ ہو, خان کوئی اپنا ایک عام ورکر کھڑا کر دے, اور یہ نون لیگ کی لیڈرشپ میں سے جس کو بھی کھڑا کر دے ریزائن, میں اپنی سیٹ سے لوں گا. اور آپ دیکھ لیں میرٹ پہ فیصلہ پھر پتہ چلے گا. خان صاحب نے اگر کہہ دیا تمام تر اسمبلی سے استعفے دے دیں تو آپ لوگ پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے استعفیٰ؟ خان صاحب کی سیٹیں پارٹی خان صاحب کی پارٹی, ہم سب پارٹی کے ورکر ہیں, امانت ہے پارٹی کی سیٹیں. نہیں, بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پش کرتی ہے بھیجنے کے لیے, یہاں پر مجبور کرتی ہے, تو اس وجہ سے یہاں پر پنجاب کی لیڈرشپ پہنچ جاتی ہے. دیکھیے عالیہ بہن بہت کام کر رہی ہیں, بہت اچھے کام کیے ہیں. لیڈرشپ ہے ہماری پنجاب سے, جب بھی کال دیتی ہے سب جاتے ہیں پارٹی کی. عالیہ حمزہ کی کال پہ آتے ہیں عمران خان کی ایریا. دیکھیے عالیہ بہن بھی تو عمران خان صاحب نے ہی لگایا ہوا ہے نا. چیف آرگنائزر کی ایک ڈیوٹی ہے, اگر ان کو سینٹر سے کوئی چیز آتی ہے تو آگے
पंजाब को तो उन्होंने ही पास ऑन करना है ना, आगे सेंट्रल पंजाब को पास करना है। वहाँ पे अहमद भाई हैं, बिलाल भाई हैं, वो भी उसी तरह अच्छे से काम करें, आगे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबको एक प्रॉपर प्रोसीजर है, पार्टी है, उसका स्ट्रक्चर है, तंजीमी स्ट्रक्चर है। जब अपोजिशन का MNAs MPs का अपना स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें उसी के थ्रू आती हैं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर बड़ी तादाद उनकी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर इस वीडियो से गुफ्तगू भी कर रहे थे। आप सामने देख सकते हैं हर तरफ जो है वो कारकुनान ही कारकुनान है। यहाँ पर PTI लीडरशिप जो है वो मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर शफीकान इस वक्त पहुँच चुके हैं। आप सामने उनको देख सकते हैं। दूसरी जानब सुषमा राजा जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। 13 महीने हो चुके हैं खान साहब जी, और तादाद दरखास्तें अदालत के इस हवाले से दी जा चुकी हैं, अदालती अहकामात भी हैं। ये दौर जो है नाकानूनियत का दौर है, अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने का दौर है। इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे उसूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और मांगते रहेंगे वो हकूक़ जो इमरान खान के हकूक़ है, उनके ख़ानदान के हकूक़ है, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़। एक आखिरी सवाल कि आज 5 स्पेशलिस्ट टीम से आए और क्रेडिबल लोग हैं सारे, मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ वो पार्टी के लिए आए, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, हम उस वक्त तक नहीं मुतमईन होंगे जब तक खान साहब के अपने जो मालिज हैं, डॉक्टर आसिम हो या डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, जब तक वो मायना नहीं करेंगे। देखिए, पिम्स से पहले भी एक दफ़ा हुआ, एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त जो माहौल है जबर का, उसमें हम बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक खान साहब के ज़ाती मालिक, जिन पे खान साहब को खुद भरोसा है, वो खान साहब का मायना नहीं करते। सर, एक आखिरी सवाल है। खान साहब ने पिछले दफ़ा ये पैगाम भी पहुँचाया है कि जो अल-कादिर ट्रस्ट है उसकी जो तारीफ नहीं लगा जी, बहुत हमने दरखास्तें भी दी हैं, हम बाहर जाके खड़े भी हुए हैं अदालत के, हम चीफ जस्टिस के कमरे में भी गए हैं, हम सड़क पे भी खड़े हुए हैं। हमने हर वो मुमकिन कोशिश की है जो की जा सकती है किसी भी मुकदमे के हवाले से। खान साहब ने कहा था तारीख ये बगैर आए ही नहीं है, तो हमेशा ये रिक्वेस्ट देखिए कैसे तारीख लेकर हम आए। देखिए ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाकर हम बात करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। अगर निज़ाम आगे से बिल्कुल आंखें बंद कर ले, गूंगा बहरा हो जाए, तो आप बताइए क्या हो सकता है। ये मामला फिर आवाम की अदालत में लेकर हम आते हैं। हम अपने हाथ से तो तारीख दर्ज नहीं कर सकते। सलमान राजा साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर एक तरफ पूरी मुज़ाहमत की जा रही है वर्कर्स की जानिब से, लीडरशिप में पहुँची है, दूसरी जानिब जो है वो आपकी लीडरशिप गाना सुनाओ और स्पीकर के ऑफिस के हवाले से, ये तो खुला तजाद हुआ सर, या फिर मुज़ाहमत में या फिर वर्कर्स को दिलाएँ कि मुफाहमत से सारे मामला बेहतर होंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये बात इस तरह नहीं है कि या ये या वो, दोनों बातें हैं। मुज़ाहमत का क्या मतलब है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। मुज़ाहमत का मतलब एक रोज़ा जलहार नहीं है। मुज़ाहमत हो रही है, हम फिक्री सतह पे कर रहे हैं। यहाँ वजूद जो है हमारे दोस्तों का, वो भी मुज़ाहमत की दलील है। ये एक अमल है जो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए हम उनके हुकूक के हवाले से पेशरफ्त कर सकते हैं, तो पार्लिमानी पार्टी ने अगर कोई फैसला कल किया है, मैं उस इजलास में शामिल नहीं था, मुझे तफसीलात नहीं मालूम कि क्या फैसला है, क्या राना सनाउल्लाह की तरफ से पेशकश आई है। मेरी मुलाकात होगी, मैं तफसीलात जानूँगा। लेकिन हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि खान साहब को उनके हुकूक मिले, बुशरा बीबी को उनके हुकूक मिले। सर, पॉलिटिकल कमेटी में कोई पुराने लोग आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं पॉलिटिकल कमेटी सर। मिनिस्टर सुषमा राजा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, ये बच्चों खान साहब उन पे भरोसा किया है, उनको कहा है कि वो लाए अमल तरतीब देंगे, वो लाए अमल गुफ्तगू पर मबनी होगा या वो लाए अमल किसी और रविश पे चलेगा। ये तमाम फैसले उन्होंने करनी है। लेकिन तारीख इसकी गवाह है कि 10-20 हज़ार लोगों से इनकलाब नहीं आ पाता। इनकलाब एक दिन का वाक़या नहीं होता। इनकलाब किसी भी कौम में तब आता है जब उसका हर बच्चा, उसकी हर औरत, उसका बूढ़ा, उसका जवान जो है अपने दिल में वो हरारत महसूस करते हैं, गली कूचों में वो हरारत नज़र आती है। तो वो मौका आता है, सदियों में शायद ऐसे लम्हात आती हैं। हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें, इनकलाब ईरान हमारे सामने है, बांग्लादेश में एक शोरश बर्पा हुई, हम जानते हैं मिस्र में क्या हुआ, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, इजिप्शियन स्प्रिंग या तहरीर स्क्वायर का जो वाक़या था, उसके बाद क्या हुआ। ये तमाम मामलात हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे बिल्कुल मुस्तरब हैं, उनकी गुफ्तगू हम सुनते हैं। लेकिन वो लोग जो तारीख़ को जानते हैं, जो हक़ाइक़ को जानते हैं, जो जानते हैं कि क्या कब मुमकिन है, क्या कब करना है, खान साहब ने उन पर भरोसा किया है, आपको भी उन पर भरोसा करना होगा। लेकिन राजा साहब, ये बताइएगा, जुम्मे का रोज़ एक खबर लीक हुई कि जो पार्लियामेंट के अंदर एक मीटिंग हुई, उसमें जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, उसमें कुछ लोगों ने जो है वो आप पर नहीं, कोई नहीं, मैंने बात की है 4-5। देखिए, खान साहब पे एतराज़ करना, देखिए खान साहब के फैसलों पे जो एतराज़ करता है, उसको फिर पार्टी ने अपनी जगह जो है उस पर नज़रसानी करना होगी।
खान साहब फैसला करते हैं कि महमूद खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे कौमी असम्बली में, खान साहब फैसला करते हैं कि अल्लामा नासिर लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे सेनेट पे, उस पर भी 2-4 लोग एतराज़ करते हैं, तो वो 2-4 लोग ही हैं और उनको किसी नहीं, वो ख़त्म हो गई बात। 2-4 लोगों ने गुफ्तगू की थी, 2-4 लोग इस नौइयत के हमेशा होते हैं और पार्टी की गालिब अक्सरियत उनको अच्छी नज़र से नहीं देखती। पार्टी जानती है कि इस पार्टी ने खान साहब के अहकामात के तहत चलना है, जिस पे खान साहब को भरोसा है, उस भरोसे का मान सब ने रखना है। अच्छा सर, ये बताएं कि सोशल मीडिया पे और जलसों में अदालत के बारे में बयानियाँ दिया जाता है, वो किस एजेंडे पे बयानियाँ दिए जाते हैं? कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है। असगर खान केस हो या उससे पहले के वाक़यात हो, हमें बिल्कुल मासूम नहीं बन जाना चाहिए, हमें अंधा नहीं बन जाना चाहिए, हमें गूंगा नहीं हो जाना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरी इदारों पर, अदलिया पर हमेशा से हमला रहा है, उन इदारों का जिनका ये काम नहीं है। कायदे आज़म ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए कि आपने दखल अंदाजी नहीं देनी, अपने हल्फ पे आपने कायम रहना है। ये माना है असगर खान केस में आकर 2 मुअक्कर अफसरान ने यह कहा कि हाँ, हमने 1990 के इलेक्शन में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए मुदाखलत की थी, हमारा हल्फ हमें इसकी इजाज़त नहीं देता था, लेकिन हमने किया। तो हम जानते हैं कि हमारी एक तारीख है, हमने उस तारीख से भी छुटकारा पाना है और अपने हाल को भी हमने आइन और कानून और आइन में दिए गए हल्फ के मुताबिक मुरतब करना है। सब गलत होते रहे। पाकिस्तान की तारीख एक तारीख है, हमने उस तारीख को जवाज़ नहीं बनाना मज़ीद तारीखी का। 2018 में अगर कोई गलती हुई तो उसको जवाज़ नहीं बनाया जा सकता 2024 की भूख का। 2024 में जो हुआ पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। एक झूठ और फरेब का बाजार गर्म किया गया, जो मुंतखब लोग थे उनको गैर मुंतखब करार दिया गया, फॉर्म फाड़े गए, नए फॉर्म मुरतब किए गए। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे वोट की कोई हुर्मत नहीं है, तुम जहाँ भी वोट दोगे फैसला वही होगा जो हम चाहेंगे। ये पाकिस्तान की तबाही की जानिब एक पेशकदमी है। इससे पाकिस्तान में फलाह नहीं आएगी, कभी भी नहीं आई। जब भी इलेक्शन में मुदाखलत की गई है, पाकिस्तान पीछे गया है। जैसे भी आपने कहा कि यानी कि यहाँ पर अमल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के इसका अमल में नहीं है, तो इसका कोई हल तो होगा? आपकी पार्टी ने कुछ सोचा होगा इसका लाई अमल क्या, तो बैठ कर किए जाए? देखिए, हर सतह पे हम मसरूफ़ अमल हैं, हम पार्लियामेंट में भी हैं, हम अवाम के सामने भी हैं, हम गुफ्तगू भी करते हैं, हम एहतजाज की सदा भी बुलंद करते हैं। ये जो फैसला साज हैं उनको होश के नाखुन लेना होंगे कि अवाम को वो एक बंद गली में ना लेकर जाएं। अवाम अपने फैसले खुद करेगी। मैं और हमारे जो दीगर दोस्त हैं पार्टी में जो अहदेदारान हैं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारे इख्तियार में नहीं रहेगा। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? मैं एक वकील हूँ, मैंने पूरी उम्र कोई जत्थे लीड नहीं किए, मैं कोई मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं कोई घोड़ों पे बैठकर या वार करने वाला शख्स नहीं हूँ। हम बात करते हैं आइन की, कानून की, हम ज़मीर को झंझोड़ते हैं। लेकिन अगर ये कारगर नहीं होती बात, इससे फ़ायदा नहीं होता, तो अवाम अपने फैसले खुद करेंगे। और हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में वो नौबत आए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हो, गुफ्त शुनीद से हो, मुज़ाकरात से हो, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब ताकत के नशे में चूर कुव्वतें मानेंगी कि इस मुल्क में शराफत को हमने मौका देना है, आइन और कानून को हमने मौका देना है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब प्लीज़ इधर से सामने से सर सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताएं कि DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथ ही फैसल बाड़ा साहब ने ये भी कहा कि अब सख्तियाँ बढ़ेंगी, मुलाकातें नहीं होंगी। इस तरह इमरान खान की बहनों का कहा कि अब उनकी भी मुलाकातें नहीं होंगी, सख्तियाँ बढ़ेंगी। ये सिर्फ बयानात की हद तक है या क्या समझते हैं कि ये सख्तियाँ बढ़ेंगी? इसमें सवाल क्या है? सर, सवाल ये है कि DGI SPR ने 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने बात कर ली ना, हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पेशावर में जलसा भी हो गया, तो क्या करेंगे वो तो सामने आ जाएगा ना। इस बारे में हल क्या है? हल देखिए, आप लोग हल उन्होंने देना है जी, हल उन्होंने देना है। उन्होंने मानना है कि पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां नहीं है, पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, पाकिस्तान की अवाम एक फैसला कर चुकी है, पाकिस्तान की अवाम को साथ लेकर चलना है। वो इमरान खान जिस पे पाकिस्तान की अवाम का एतमाद है, उसको साथ लेकर चलना है, उसकी पार्टी को साथ लेकर चलना है। कोई वजह नहीं कि इस मुल्क में इंतशार हो, कोई वजह नहीं कि हम सब इस मुल्क की फलाह के लिए अपना अपना रोल अदा ना करें। ये तो सोचने वालों को सोचना है कि यहाँ बका हमने ज़ात को देनी है या हमने निज़ाम को बका देनी है, जमहूरियत को बका देनी है, इंसानी जो हुकूक हैं उनको बका देनी है। सर, मैं भी यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं कि हम एहतजाज या मुलाकातों के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये बदमाशी करेंगे तो पाबंदियां लगा देंगे, तो सर हल क्या है? देखिए, मैंने अर्ज़ कर दिया ना कि हल यही है कि होश के नाखुन लिए जाए। हमने कहाँ बदमाशी की है? यहाँ मुनज़्ज़म तरीके से बहनें खड़ी हैं, भाई खड़े हैं, वकला खड़े हैं, पार्लियामेंटेरियन खड़े हैं, तो बदमाशी कहाँ है यहाँ पे? ये आगे जंजीरें जो हैं, ये जो बैरियर है, ये खिलाफ कानून है।
हक है बहनों का, हक है वकला का कि वो खान साहब से मिलें। आज का दिन मुकर्रर है हाई कोर्ट के फैसले के तहत, कानून के तहत मुलाकात के लिए, तो क्यों ये खड़े हैं यहाँ में रोक कर? ये इसका जवाब होना चाहिए। सवाल आपको ये करना चाहिए कि क्यों लगाए बैरियर यहाँ पे, उसके पीछे जत्थे पुलिस के क्यों खड़े हैं? सर आप शायद मेरे सवाल को नहीं, आपका सवाल है, आगे चलते आपका सवाल है, आगे कुछ नहीं, आगे 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 चलते हैं चलें। सर। ये जो जलसे जो शुरू किए हैं कि अब हर इतवार को जलसा होगा, जैसे अभी गुवाहाटी में होगा, उसके बाद केपीके की देखिए, आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। हम जमूद और सुकूत का शिकार तो नहीं होंगे ना, ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे। अब आपको इस पे कोई एतराज़ है, आप समझते हैं हमें घोड़ों पे और ट्रकों पे बैठ जाना चाहिए, आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए, तो वो आपका गुमान हो सकता है। हम आईनी कानूनी तरीके से गुफ्तगू करते रहेंगे।